आज ये हम लोगों का 11th क्लास है। हमारे पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट किया था और गुप्ता डायनेस्टी के प्रथम दो इम्पोर्टेंट किंग कौन थे? तो पहला थे चंद्रगुप्त प्रथम और सेकंड थे समुद्रगुप्त। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। आज के क्लास में गुप्ता डायनेस्टी में उसके बाद जो इम्पोर्टेंट किंग्स आए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। তো আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা গুপ্তা ডাইনেস্টি স্টার্ট করেছিলাম এবং গুপ্তা ডাইনেস্টির মধ্যে প্রথম যে দুটো মেন ইম্পর্ট্যান্ট কিং ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম এবং সমুদ্রগুপ্ত, তাদের দুজনের ব্যাপারে আমরা সব কিছু ডিটেলে জেনেছিলাম। আমরা আজকের ক্লাসে তাদের পর যে ইম্পর্ট্যান্ট কিংস এসেছিলেন তাদের সম্বন্ধে ডিসকাস করব। তো আজকে पहले কিং है চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়। আজকের প্রথম কিং হচ্ছেন চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়। ইনি কে ছিলেন? তো ইনি সমুদ্রগুপ্তের ছেলে ছিলেন। ये कौन थे? तो ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। समुद्रगुप्त was succeeded by रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था? तो आया था रामगुप्त। लेकिन हम लोगों का चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? उनको मार डाला था, किल्ड हिम एंड मैरिड हिज क्वीन दुबा देवी। और उनके जो रानी थे, क्वीन थे दुबा देवी, उनसे विवाह कर लिया था। तो समुद्रगुप्तर पर কে এসেছিলেন? তো সমুদ্রগুপ্তের পর এসেছিলেন রামগুপ্ত। কিন্তু আমাদের চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় কী করেছিলেন? তাকে মেরে ফেলেছিলেন এবং তার যে কুইন ছিলেন দুবা দেবী, তার সঙ্গে তিনি বিবাহ করেছিলেন। ही एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस। वह किसमें प्रवेश किए थे? तो मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब जिस राजा को वो पराजित करते थे उनके रानी के साथ, ठीक है, विवाह कर लेते थे। तो यही मैट्रिमोनियल अलायंस में उन्होंने प्रवेश किया था। किनके साथ? तो नागा के साथ। बाय मैरिंग हिज प्रिंसेस। उनका जो प्रिंसेस था कौन? कुबेर नागा। उनके साथ विवाह करके इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस में प्रवेश किया था। हुज डॉटर, जिनकी पुत्री कौन थे? प्रभावती वॉज मैरिड टू रुद्रसेना द्वितीय। उनका विवाह किससे हुआ था? तो रुद्रसेना द्वितीय से। হি এন্টার্ড ইনটু ম্যাট্রিমোনিয়াল অ্যালায়েন্সেস। তিনি প্রবেশ করেছিলেন ম্যাট্রিমোনিয়াল অ্যালায়েন্স। ম্যাট্রিমোনিয়াল অ্যালায়েন্স মানে রাজা যাকে পরাজিত করতেন, যে রাজাকে তার ওয়াইফের সঙ্গে, রানীর সঙ্গে বিবাহ করে নিতেন। তো তিনি এন্টার করেছিলেন সেই ম্যাট্রিমোনিয়াল অ্যালায়েন্সে। কাদের সঙ্গে? তো উইথ নাগাজ, ঠিক আছে, নাগাদের সঙ্গে। বাই ম্যারিং প্রিন্সেস কুবের নাগা। বিবাহ কার সঙ্গে করেছিলেন? তো তাদের প্রিন্সেস যে ছিল কুবের নাগা, তার সঙ্গে। হুজ ডটার, যার পুত্রী প্রভাবতী, ওয়াজ ম্যারিড টু রুদ্রসেনা সেকেন্ড। যার বিবাহ হয়েছিল, প্রভাবতীর বিবাহ হয়েছিল রুদ্রসেনা সেকেন্ডের সঙ্গে। টুক দ্য টাইটেল অফ বিক্রমাদিত্য বাই ডিফিটিং রুদ্র সিমহা থার্ড। টুক দ্য টাইটেল, তারপর ওনাকে একটা টাইটেল দেওয়া হয়েছিল। কি টাইটেল পেয়েছিলেন? তো বিক্রমাদিত্য টাইটেল পেয়েছিলেন। কেন পেয়েছিলেন? তো তিনি ডিফিট করেছিলেন, পরাজিত করেছিলেন। কাকে? তো রুদ্রসীমা তৃতীয়কে তিনি পরাজিত করেছিলেন বলে তিনি একটা টাইটেল পেয়েছিলেন। সেটা কি ছিল? তো বিক্রমাদিত্য। আ কিং অফ উজ্জয়ন। রুদ্রসীমা তৃতীয় কে ছিলেন? তো তিনি একজন কিং ছিলেন, উজ্জয়নের একজন কিং ছিলেন। হি অলসো টুক দ্য টাইটেল অফ সীমা বিক্রমা। আর একটা টাইটেল তার ছিল কি? তো সীমা বিক্রমা। तो टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, उनको एक टाइटल दिया गया था। क्या टाइटल? तो विक्रमादित्य। बाय डिफीटिंग रुद्रसीमा थर्ड। रुद्रसीमा थर्ड को पराजित करने के बाद उनको एक टाइटल मिला था, क्या? तो विक्रमादित्य। और ये रुद्रसीमा थर्ड कौन थे? तो ये थे अ किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन के एक किंग थे। ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ सीमा विक्रमा। उनको और एक टाइटल मिला था, क्या? उनको भी टाइटल मिला था, क्या? तो सीमा विक्रमा। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू इशू सिल्वर कॉइन। ठीक है, सिल्वर कॉइन इशू करने वाले वो प्रथम किंग थे। कौन? गुप्ता डायनेस्टी के। he was the first ruler of गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी তিনি প্রথম কিং ছিলেন টু ইস্যু সিলভার কয়েন। অলসো ইস্যুড कॉपर कॉइन्स। তিনি कॉपर कॉइनও इशू করেছিলেন। उन्होंने कॉपर कॉइन्स भी इशू किया था। द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन फिक्सड नियर কুতুব মিনার। যে আয়রন পিলার ইনস্ক্রিপশন আছে
লিপি আছে ফিক্সড নিয়ার কোথায় আছে তো কুতুব মিনারের কাছে আছে ইন দিল্লি মেনশনস আ কিং চন্দ্র। সেই যে ইনস্ক্রিপশন আছে তা সেটার মধ্যে একটা নাম উল্লেখ আছে কি একজন রাজার নাম উল্লেখ আছে চন্দ্র। তো কনসিডার্ড বাই মেনি অ্যাজ চন্দ্রগুপ্ত সেকেন্ড অনলি। তো অনেকেই মনে করেন যে সেই যে কিংয়ের নাম ওখানে মেনশন আছে সেটা কে তো আমাদের চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়। द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, जो एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है कहाँ है वो कुतुब मीनार फिक्स्ड नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली मेंशंस। उसमें क्या है वो जो शिलालेख है उसमें क्या है एक किंग का नेम मेंशन किया हुआ है उल्लेख किया हुआ है कौन तो चंद्र। तो बहुत लोग क्या मानते हैं कि वो जो चंद्र जो वहाँ पे नेम मेंशन है वो कौन है तो हम लोगों का चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। His court was adorned by celebrated 9 gems. His court was adorned মানে হয়ে যাচ্ছে সুশোভিত। তো তার যে কোর্ট ছিল শোভা ছিল সেটাতে কটা সেলিব্রেটেড 9 জেমস 9টা 9 জেমস ছিল যেগুলোকে কি বলা হতো নবরত্ন বলা হতো ঠিক। তাদের মধ্যে কে কে ছিলেন তো কালিদাস ছিলেন, অমর সিমা ছিলেন, বরাহমিহির ছিলেন এবং ধনন্তরী ছিলেন। His court was adorned by celebrated 9 gems. उनका जो कोर्ट था सभा था उनका शोभा कौन बढ़ाता था तो 9 रत्न जिसको क्या कहते थे नवरत्न और इंग्लिश में 9 जेम्स जिसको कहा जाता था। वो 9 रत्न में कौन कौन थे तो कालिदास थे, अमर सिमा थे, वराहमिहिर थे और धनंतरी थे। चाइनीज पिलग्रिम मतलब हो गया तीर्थ यात्री। फाहियन विजिटेड इंडिया एट दिस टाइम, इन्हीं के टाइम क्या किए थे तो फाहियन इंडिया विजिट किए थे। चाइनीज पिलग्रिम चाइनीज जो तीर्थयात्री छिलो के तो फाहियन তিনি তার সময়ে ভারত ভিজিট করেছিলেন। এবং চন্দ্রগুপ্ত সেকেন্ডের পর কে এলেন तो कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कौन आ गया तो कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम कौन थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे तो सन थे। कुमारगुप्त प्रथम के छिलेन तो चंद्रगुप्त द्वितीय पुत्र छिलेन। कुमारगुप्त प्रथम की करेছিলেন तो फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापन करेছিলেন कुमारगुप्त प्रथम। और रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट टाइम ऑफ इंडिया এটা একটা খুব फेमस यूनिवर्सिटी। तो कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था तो नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने स्थापना किया था ठीक है नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कि एक फेमस रिनाउंड मतलब हो गया फेमस यूनिवर्सिटी है ठीक है ऑफ एंशिएंट टाइम इंडिया। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। वर्शिपर मतलब हो गया पूजा करना उपासना करना। तो ये कुमारगुप्त प्रथम जो थे किनका पूजा करते थे तो वो लॉर्ड कार्तिकेय का पूजा करते थे। और कार्तिकेय कौन थे तो शिव जी का पुत्र थे लॉर्ड शिवा का पुत्र थे। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। আমাদের কুমারগুপ্ত প্রথম কে ছিলেন কুমারগুপ্ত প্রথম কি করতেন তিনি লর্ড কার্তিকের পুজো করতেন এবং কার্তিক কে ছিলেন তো লর্ড শিব ঠাকুরের পুত্র ছিলেন। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन उनके रेन के अंतिम ईयर में ठीक है अंतिम साल में क्या हुआ था द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी शांति और समृद्धि क्या हुआ था ऑफ द एम्पायर वॉज डिस्टर्ब टोटली डिस्टर्ब हो गया था। क्यों डिस्टर्ब हो गया था ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ तुर्को मंगोल ट्राइब हुनाज। उस टाइम क्या किया था आक्रमण किया था कौन तो तुर्को मंगोल ट्राइब मतलब एक जनजाति होता है ठीक है। तो तुर्को मंगोल ट्राइब जो था जनजाति और हुन जनजाति उन्होंने क्या किया था आक्रमण किया था इन लोगों पे ठीक है। तो इससे क्या हुआ था जो पीस था शांति और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि था इस एम्पायर का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। ड्यूरिंग ये वाज नहीं होगा ये वार होगा ठीक है। ड्यूरिंग द वार विद द हुनाज कुमारगुप्त डाइड और हुन लोगों के साथ युद्ध करते वक्त ही हम लोगों का कुमारगुप्त प्रथम का मृत्यु हुआ था। इन द लास्ट ইয়ার্স অফ হিজ রেন তার শাসনের লাস্ট বছরে কী হয়েছিল দ্য পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি শান্তি এবং সমৃদ্ধি এই সাম্রাজ্যের কী হয়েছিল অনেকটা ডিস্টার্ব হয়ে গিয়েছিল। কেন হয়েছিল ডিউ টু দ্য ইনভেশন মানে হলো আক্রমণ তুর্ক মঙ্গল উপজাতির
আক্রমণের দ্বারা এবং হুনদের আক্রমণের দ্বারা কী হয়েছিল, ডিস্টার্ব হয়ে গেছিলো। কি ডিস্টার্ব হয়েছিল, তো পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি অফ দিস এম্পায়ার ডিউরিং দ্য ওয়ার, এটা ওয়াজ হবে না, এটা ওয়ার হবে। ডিউরিং দ্য ওয়ার উইথ দ্য হুনাজ অ্যান্ড হুনাজ কুমারগুপ্ত ডায়েড, হুনদের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীনই ডিউরিং দ্য ওয়ার উইথ দ্য হুনাজ, হুনদের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন আমাদের কুমারগুপ্ত কী হয়েছিল, মারা গিয়েছিলেন। अब कुमारगुप्त के बाद कौन आ गए, तो स्कंदगुप्त आ गए। ঠিক আছে, কুমারগুপ্ত প্রথমে, পরে কে চলে এলো, তো স্কন্দগুপ্ত চলে এলো। স্কন্দগুপ্ত কে ছিলেন, তো কুমারগুপ্ত প্রথমে सन ছিলেন, पुत्र ছিলেন। स्कंदगुप्त कौन थे, तो कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र थे ये। ही फेस्ड हुनास एफेक्टिवली, जब इनके पिताजी मतलब कुमारगुप्त प्रथम का मृत्यु हो गया था हुन लोगों के साथ युद्ध में, उनके बाद ये जो आए थे स्कंदगुप्त, इन्होंने फेस्ड हुनास एफेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से फेस किया था, किनको, तो हुन लोगों को, ठीक है, उनके साथ अच्छे से युद्ध किया था। কুমারগুপ্ত প্রথম যখন মারা গেছিলেন হুনদের সঙ্গে যুদ্ধে, তারপর কি এসেছিল, তো স্কন্দগুপ্ত, তিনি খুব দারুণভাবে ফেস করেছিলেন কাদের, তো হুনদের। रीस्टोर्ड सुदर्शना लेक, रिस्टोर्ड मतलब हो गया मरम्मत करवाना। एक लेक था, कौन सा लेक, तो सुदर्शना लेक, इनका इन्होंने मरम्मत करवाया था। रिस्टोर्ड माने हो गल रिपेयर, तो एक लेक छिलो, लेक माने ह्रद, एक ह्रद छिलो सुदर्शन ह्रद, सेटाके तिनी रिपेयर कराइछिलेन के, तो स्कंदगुप्त। आफ्टर हिज डेथ द ग्रेट डेज अफ गुप्तास वेयर ओवर, तार मृत्युर पर कि हलो, যে ভালো দিন ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের সেগুলো শেষ হয়ে গেল। দ্য এম্পায়ার কন্টিনিউড বাট সেন্ট্রাল কন্ট্রোল উইকেন্ড, এম্পায়ারটা কিন্তু চলছিল কিন্তু সেন্ট্রাল যে কন্ট্রোল ছিল সেটা কি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অ্যান্ড লোকাল গভর্নর, এবং লোকাল যে গভর্নর ছিল বিকেম ফিউডেটারি কিংস উইথ হেরিডিটারি রাইটস। ফিউডেটারি মানে হয়ে গেল ভূমি, এক মিনিট, ভূমধ্যিকারী, ঠিক আছে, মানে ভূমির ওপর অধিকার করে নেওয়া। তো তারপরে যে ছোট ছোট লোকাল গভর্নর ছিলেন তারা কী করছিলেন, তো তারা নিজেই কি লোকাল গভর্নরগুলো কী করছিলেন, তো তারা ভূমির উপর অধিকার করে নিচ্ছিলেন। বিকেম ফিউডেটারি কিংস উইথ হেরিডিটারি, হেরিডিটারি মানে হয়ে গেল বংশগত, এবং তারপরে যারা তাদের বংশে রাজা হতেন তারাও সেম কাজগুলো করতেন। তো এইভাবে কি হলো, গুপ্তা ডাইনেস্টি স্লোলি কী হয়ে গেল, তো তা ভালো দিনগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো सब शेष हो गया। तो आफ्टर हिज डेथ द ग्रेट डेज ऑफ गुप्तास वेयर ओवर, इनके स्कंदगुप्त के डेथ के बाद क्या हुआ था, जो अच्छे दिन थे गुप्तास का वो ख़त्म हो गया था। द एम्पायर कंटिन्यूड, एम्पायर कुछ दिन चला था बट सेंट्रल कंट्रोल वीकेंड, लेकिन सेंट्रल जो कंट्रोल था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। एंड लोकल गवर्नर जो थे बिकेम फ्यूडिटरी, फ्यूडिटरी मतलब हो गया सामंत, एक मिनट, मतलब ज़मीन पे इन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था। बिकेम फ्यूडिटरी किंग्स विथ हेरिडिटरी, हेरिडिटरी राइट्स मतलब हेरिडिटरी मतलब हो गया वंशगत, ठीक है, मतलब इसके बाद जो किंग्स बनते थे इसके पुत्र वो लोग भी सेम प्रोसेस फॉलो करते थे। तो ऐसे ही क्या हो गया, गुप्ता साम्राज्य के जो अच्छे दिन थे वो ख़त्म हो गए। अ फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, क्या क्या रीजंस था गुप्ता एम्पायर के ख़त्म होने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट था डिस्ट्रॉय होने के लिए। द वीक सक्सेसर ऑफ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त तक तो ठीक था लेकिन उसके बाद जो सब किंग्स आए थे वो लोग कुड नॉट चेक द ग्रोइंग हुना पावर, हुन लोगों का पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था लेकिन हो रहा था, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो किंग्स आए थे उन लोगों को इसका भनक भी नहीं था। स्कंदगुप्त पर्यন্ত ঠিক ছিল কিন্তু তারপর যে রাজা কিংরা এলো কুড নট চেক, তারা বুঝতেও পারেনি, কি বুঝতে পারেনি, তো হুনাদের পাওয়ার বুঝতে পারেনি। হুনা মানে হচ্ছে বাংলায় হুন। ফিউডিটারিজ রোজ ইন বিহার বেঙ্গল অ্যান্ড এমপি,
তো ফিউডিটারিজ মানে ওই ভূমধ্যিকারী, তো ওটা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল কোথায়, তো বিহারে, বেঙ্গলে এবং মধ্যপ্রদেশে, এটাও একটা কারণ ছিল। মিহিরকুলা ওয়াজ দ্য মোস্ট ফেমাস হুনা কিং। হুন রাজাদের মধ্যে সবথেকে ফেমাস কে ছিলেন, তো মিহিরকুলা ছিলেন। ইউএন সাং মেনশনস হিম, এটা হিজ হবে না, এটা হিম হবে। यूएन संग मेंशंस हिम एज ए फियर्स, फियर्स मतलब हो गया भयंकर। यूएन संग मेंशंस हिम एज ए फियर्स पर सेक्टर ऑफ बुद्धिज्म, सेक्टर माने हो गया कटर जे डिस्ट्रॉय करे। तो यूएन सांग जो थे उन्होंने मेंशन किया था किनको, तो मिहिरकुला को। क्या बोला था इनको, तो फियर्स, फियर्स मतलब हो गया भयंकर, ठीक है, भयंकर कटर मतलब बुद्धिज्म को नष्ट करने वाला एक बहुत खतरनाक किंग थे ये। किनके किंग, तो हुन लोगों का ये किंग थे। मिहिरकुला वॉज द मोस्ट फेमस हुना किंग। ही वॉज डिफीटेड, इनको किन्होंने हराया था, तो यशोधर्मन ने हराया था। यूएन सांग मेंशंस मिहिरकुला वॉज द मोस्ट फेमस हुना किंग। मिहिरकुला छिलेन हुनदेर सबथेके फेमस राजा। यूएन सांग तार नाम उल्लेख करेছিলেন এবং বলেছিলেন তিনি কেমন ছিলেন, তো খুবই হিংস্র ছিলেন। সেক্টর মানে হয়ে গেল কাটার, যে ডিস্ট্রয় করে। তো তিনি বুদ্ধিজম মানে বৌদ্ধ ধর্মকে অনেক ডিস্ট্রয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। হি ওয়াজ ডিফিটেড বাই যশোধর্মন, ওনাকে কে হারিয়েছিল, কে ডিফিট করেছিল, তো যশোধর্মন ডিফিট করেছিলেন তাকে। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन माने हो गया प्रशासन। तो गुप्त जो साम्राज्य छिलो तार प्रशासन केमन छिलो, गुप्त साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। तो किंग्स वेर कॉल्ड परमेश्वर, किंग्स जो किंग्स थे, राजा थे, उनको क्या कहा जाता था, परमेश्वर कहा जाता था, महाराजा धीराज कहा जाता था, और परम भट्ट रेखा कहा जाता था। जे राजा छिलेन तादेर की बोला तो परमेश्वर, महाराजा धीराज एवं परम भट्ट रेखा बोला हतो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स वेयर कुमार मत्यास, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर कौन थे, तो कुमार मत्यास थे। देयर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वॉज फ्यूडल, उन लोगों का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था, फ्यूडल था। फ्यूडल मतलब सामंती। इन कैरेक्टर दो द एम्पर, लेकिन जो राजा थे, सम्राट थे, हैड द स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब हो गया प्रोफेशनल परमानेंट आर्मी, प्रोफेशनल परमानेंट आर्मी। तो जो एम्पर थे उनका जो आर्मी था कैसा था, वो प्रोफेशनल परमानेंट आर्मी था। दे इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, इन्होंने क्या किया था, सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू किया था इन एंशियंट इंडिया, विच वे आर कॉल्ड दिनार्स, जिसको क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। सिल्वर कॉइन्स वे आर कॉल्ड रुपयाकाश, और सिल्वर जो कॉइन्स था उसको क्या कहा जाता था, तो रुपयाकाश, उसको उन कॉइन्स को कहा जाता था, सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था। तो आज के क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में डिस्कशन किया। आज के क्लास में हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद उनका पुत्र आ गया कौन, तो कुमारगुप्त प्रथम, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और उसके बाद अंतिम जो मेन किंग थे स्कंदगुप्त, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद क्या हुआ, स्कंदगुप्त के बाद जो सक्सेसर आए थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, गुप्त साम्राज्य डिस्ट्रॉय होने लगा था। तो आज के আমরা এতটাই করলাম। আমাদের নেক্সট ক্লাসে গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে যে ইম্পর্টেন্ট एमसीक्यू क्वेश्चन আছে সেগুলো আমরা डिस्कस করব। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुप्त साम्राज्य से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।